जी प्लीज। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੀਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ 17 ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 4000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ 4000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਡ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਲੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਨਿਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ 16 ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ 300 ਔਰ 400 ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੜਾਇਆ 1500 ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆ ਸੀ गिरफ्तार करने वास्ते उन्हें पूरी इबादत दी है। 11:15 बजे मेरे को वो टेलीफोन आया, मैं वहाँ गया। वहाँ कुछ लोग वहाँ खड़े मुजाहरा कर रहे थे और उसका नाम क्या है, वो मुजाहरा करते हुए फिर हमने उनको गिरफ्तार किया। धारा 18 सारियाँ पड़ी हुई हैं, देखना है 700 फोटो काफी पड़ी है। 102 बंदे को जिन्हें 100 आदमी और 2 जनानियां। और कीर्तन गल सी कि जे 350 का कट या 400 का कट मन भी लिखे ना तो सिखा की गिनती 200 नहीं टच कर। बाकी तो क्योंकि उन्होंने अपन इच्छावां है, किसी ने असैम्बली लड़नी, किसी ने कारपोरेशन लड़नी है, वो दूसरे धर्म के लोगों भी नाल लिया है, चलो ये आत्मा आपके काम में आए। इस गल तो साफ पता लग गया कि 2 गल्लां सामने आई कि एक
कि दिल्ली के सिख बादल दल नाल बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये जी अमेंडमेंट हुई है और एडा रिफॉर्म होया ये दिल्ली के सिखों ने अपनी मोहर ला दी। जी गल बादल साहब कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं भी ये सरकारी दखलअंदाजी हैगी, ये फलाण है ठीक है। ये गल मैं असीं कह सकते हैं कि साडे कोल सारियां ये लिस्टां हैगियां जिहदे विच सरकार ने जब जब लोड़ पई है गुरुद्वारा रिफॉर्म्स किया है। जिस एक्ट बनया सी ते उहदे विच इनडायरैक्ट तौर पर श्रोमणी कमेटी का जिहड़ा सी प्रबंध सी, पर डायरैक्टली जितने भी गुरुद्वारे सन सारे अपने अलग अलग प्रबंध कर रहे, सारे के अलग अलग प्रबंध सन। 1936 34 उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार को कह के इन्होंने उन्होंने सारे के प्रबंध श्रोमणी कमेटी के अधीन कराए। 1956 पैप्सू के स्टेट के कोलों इन्होंने अमेंडमेंट कराइया। फिर 20 सीटां जिहड़ियां सन पहली बार सिखां दे विच, जबकि दसम पातशाह और गुरु साहबान के जाति भेदभाव बिल्कुल नहीं सी, पर इन्होंने 20 सीटां सिखां दे विच ये कहकर रिजर्व कराया भी छोटी जातियों दी सिखां दी भी वोटां बननियां चाहिए, उन्होंने भी सीटां होनी चाहिए। उस तो बाद इन्होंने 20 सीटां जनानियां रखवाइयां है, 30 सीटां औरतां दियां राखियां करवाइयां। और फिर अज तो 5 साल पहले इन्होंने सीटां डबल कर दी, 130 के हाउस नूं 270 का हाउस बना के रख दिता। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नूं भेजी हुई है कि साडी जिहड़ी इलैक्शन हैगी हर साल की एग्जैक्टिव की चोण है, इस नूं सिर्फ 2 टर्म पहली और उसके बाद 2.5 साल बाद एक हो गए। ये हर साल की एग्जैक्टिव की जिहड़ी चोण है इस नूं नहीं होना चाहिए। इन्होंने पूछो भी जिहड़ी तुसीं प्राइम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिख के कराओगे वो हलाल है तो बाकी सब हराम है। जब इन्हां कोल आंदा है तब ते सब कुछ हलाल है, तुसीं जिहड़ियां मर्जी अमेंडमेंट करा लो, सिख धर्म के मुल्क जाके गल्लां कर लो, सिखां वितरे वाली गल कर लो, भेदभाव वाली गल कर लो, तो वो सारियां अमेंडमेंट करो। और एक होर भी गल यह है कि जब बरनाला सरकार सी ते 85 के अधीन जितने गुरुद्वारे सन पंजाब के वो सारे श्रोमणी कमेटी के अधीन आ। जिहड़े गुरुद्वारियां दी आमदन वध सी उन्हां सारियां गुरुद्वारियां नूं फिर इन्होंने 85 लगवा के श्रोमणी कमेटी के अधीन कराए। किहड़ी गल है जिहड़ी अमेंडमेंट सरकारी सरकार करनी, सरकार ने कानून सरकार ने बनाया और एक रिफॉर्म की गल आई तो इस सरकारी दखलअंदाजी हो गई। पर मैं गल कह सकता वहां किसी भी अकाली लीडर वालों सवाए सरदार प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल दे जिन्होंने किसी अकाली वालों कोई सपोर्ट पंजाब से नहीं। समझो पंजाब दे विच एक खाना फूसी चल रही है कि दिल्ली वर्गी अमेंडमेंट पंजाब में भी होनी चाहिए है। जेड़ा पदरपुणा पंजाब च वधिया है, जेड़ा नौजवान सिक्खी तो दूर जा रहा है, नशा दसिया जा रहा है, तद तक ही संभव होएगा जब तक कि सिखां की धार्मिक लीडरशिप जी उभर के सामने नहीं आएगी। और धार्मिक लीडरशिप तो सामने आएगी जे डायरैक्ट चोण श्रोमणी कमेटी के प्रधान की पंजाब की सिख संगत करेगी या जिथे जिथे गुरुद्वारे हैं भावें हरियाणा भावें हिमाचल वो सारे चुन के उन्होंने भेजणगे तां वो बादल के डब्बे चो निकलणगे। इस दा एक गल का जरूर नुकसान होना है कि जिहड़ा लिफाफा कल्चर अज तो 10 साल पहले बादल साहब का दिल्ली में भी चलता सी, अज तक पंजाब में भी चल रहा है, वो लिफाफा कल्चर का भोग पै गया। ये जरूर नुकसान होया। और लिफाफा उन्होंने कितने रखना है, जेडे बाकी दे सन या जेडे खोल हुए सन उन्होंने किहड़े जायज घर च रखना है, ये फैसला आप करना। बाकी असीं ये गल कह सकते हैं, असीं लगे हुए हैं तो कोशिश के साडी नहीं, असीं तो हर वक्त चाहते हैं कि ये चोणां जिहड़ियां ये हर हालत वक्त तो पहला होण। चोणां लेट कराउण दे विच प्रकाश सिंह बादल का दल दिल्ली वाला का वो जिम्मेवार है। उसका इतों अंदाजा ला लो, जिहड़ा वकील हाई कोर्टा में सुप्रीम कोर्टा में पेश होया गुरबख्श सिंह का नाम है, उसनूं उन्होंने 10 दिन पहले बड़ा मान सत्कार दिता, ऑनर दिता है। उन्हें कहा जी ऑनर किस गल का, केस तो तुसीं हार गए हो, तुहाडी जिहड़ी पटीशन सी सारी खारिज हो गई है। तो उन्होंने एक ने जवाब दिता जिहड़ी साडी मंशा सी इलैक्शन डिले करन दी, वो तो इन्हें पूरी कराती। असीं नहीं सी चाहते 11 मार्च वाली चोण होवे, उसने पूरी करती। इस वास्ते असीं सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, इसनूं सलोपा दे रहे हैं।
इन्होंने दादा तो पता लग सकता है चोणों तो कौन नट रहा है, चोण कौन डिले कर रहे हैं, मगर मच सूए जितने मर्जी मंगा लैन, पर इन्होंने अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। ये दिल्ली दी संगतां ने जिहड़ा भरोसा परताया, जिहड़ी बहुत थोड़े समय अपील करके जिहड़े हज़ारां की गिनती लोग धन्नवाद करनगे दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। और इन्होंने किन्ने सन ये अंदाजा ला लो कि सरकार ने बैरियर लाए हुए सन 4-4, जब उन्होंने देखा भी ये है ही कुछ नहीं तो उन्होंने सारे बैरियर खोलते, जाओ जी जितों मर्जी चले जाओ। तो कई इतने बैठे प्रेसमैन जिन्होंने कहा जी मैं बस से चढ़ के वेख्या है, सिर्फ जिते बैरियर लगे सन उत्थे झुंड पुंड थोड़ा जिहा नजर आता सी, बाकी कहता बंदा ही कोई नहीं नजर आता पाया। इतों तक भी मैनूं किसी बंदे ने कहा जी उत्थे सड़क के खलो के गुटका खोल के भावें हुंदी सी मूँह च पांदिया मैं वेख्या उसनूं। ये जी हालत सी, ये जो बंदे लैके गए सन। मैं तो तुहानूं इन्हां दी जो सही दशा वो बयान की हैगी। अखबारां दे विच चलो कई नहीं गए, इन्होंने प्रेस रिलीज बना के भेज दी, 1500 बंदे एलो पूरी असीं भी चिट्ठी लैके आया। असीं क्या बस उत्थे इक्को खड़ी सी, पता नहीं किवें कुक्कड़ां डाके लै गए इन्होंने, पर चलो साढ़े हिसाब से 50 साढ़े कोई तार होने पर उन्हें 102 करा दें, चलो 102 ही सही। एक असीं तुहानूं कहना चाहांगे भाई ये जिहड़ियां प्रधानगी दियां powers vested to members and other office bearer including president is not being changed. ये कार्यशैली इस अमेंडमेंट दे विच चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्रोसेस टू इलैक्ट प्रेजिडेंट दैट इज बीइंग चेंज। क्योंकि इन्हां नूं पता हैगा भाई समुची दिल्ली दे विच इन्हां दी साख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि अज तक तुसीं रिकॉर्ड कढ के देख लो, सिवाए सानू गाला कढण दे इन्होंने दूसरा प्रोग्राम नहीं रखा। कभी भी दिल्ली के सिखां नूं गुरुद्वारे के प्रबंध लई, गुरुद्वारे के सिखां दे भले लई कोई इन्होंने प्रोग्राम लिखे होण, कोई ना कोई प्रोग्राम होण, बैठक पत्रकार सारे दसन इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच, किसी मीटिंग दे विच सिवाए गाल कढण दे कभी कोई दूसरा काम किया है। और मौजूदा प्रधान नूं ये भुल गया, कह रहा सी इंदिरा गांधी वर्गियां माड़ियां तां इस सरकार दे विच पै गईयां। यादाश्त नूं अपना तेज करो। तुहाडे वालदैन साहब ने अनपढ़ता का जिहड़ा सी शर्त वो इंदिरा गांधी को दूर करवा के खुद प्रधान बनिया सी। जथेदार उत्थे एक मत सी भाई 10वीं ते 10वीं तो घट प्रधान नहीं बन सकता, ऑफिस बेयर नहीं बन सकता। जथेदार संतोख सिंह ने अपने संबंधां नूं देखते हुए इंदिरा गांधी को उस वक्त की प्रधानमंत्री को अमेंडमेंट करवाई एक्ट दे विच भाई कोई नहीं अनपढ़ भी प्रधान बन सकता है। वो एक्ट की अमेंडमेंट तो बाद जथेदार संतोख सिंह प्रधान बनया और अज उसका लड़का उसे अमेंडमेंट नूं ही निंदरिया, करन वाले भी निंदरिया और अपने बाप नूं भी निंदरिया। ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां असीं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं भाई बादल साहब दी अमेंडमेंटां जिहड़ियां हो रही वो पंथक हैं। जे कांग्रेस सरकार अपने वालों लिफाफा भेजे भी ये साडा प्रधान बनना चाहिए है, वो सरकारी दखल अंदाजी कही जा सकती है। जे कोई अमेंडमेंट हुई है, रिफॉर्म हुई है, सरकार वालों हुई है, क्योंकि सरकार नहीं करना है। ये चोण दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नहीं करा सकती, ये चोण श्रोमणी कमेटी नहीं करा सकती, ये चोण करवा सकती है तो खाली सरकार करवा सकती है। जे सरकार ने कोई सिखां दे भले दे विच कोई रिफॉर्म लियाती है, असीं उस जिहड़ी ये प्रेजेंट रिफॉर्म हैगी है, असीं इस रिफॉर्म दी भरपूर स्वागत करते हैं। असीं ही नहीं आने वाली चोणों से भी देख लेंगे कि इस मुद्दे के उपर कितनी भारी गिनती के सिख वोटा पाते हैं और कितने पाते हैं। उन्होंने अपना फिक्र छड्डो, अपना प्रधानगी का कैंडीडेट ऐलान करो। असीं तुहाडे नाल रल के सरकार के कोल पुरजोर मंग करते हैं इस अमेंडमेंट को फौरन पास करके और फौरन कानून बना के इलेक्शन कराई जान। असीं तुहाडे नाल चलते हैं, असीं इकट्ठे जाण नूं तैयार हाँ और सरकार को कहते हैं दिसंबर तक ये काम हो सकता है, कोई मुश्किल गल नहीं।
31 दिसंबर तक ये काम हो सकता है, तुसीं चलो नाल साडे। इतना तुहानूं दर्द हैगा इलैक्शनां छेती होण दा, चलो असीं इस काम दे विच तुहाडा पूरा साथ देंगे, इलैक्शनां लड़ांगे तुहाडे खिलाफ, इस काम में तुहाडा साथ देंगे और ये कहांगे इस दल ने बड़ा चंगा काम किया है। खाली एक लाइन बोल के असीं विरोध नहीं करते तो उस बाद खाली विरोध ही करना, दिस इज नॉट फेयर। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना होए